ویلاسٹی، آپ نے سائیکل اور کار کی حرکت کا بغور مشاہدہ کرنا ہے۔ سائیکل کی حرکت اس طرح ہے، اب کار کی حرکت کا مشاہدہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ سائیکل نے اپنا سفر آہستہ آہستہ طے کیا ہے اور کار نے اپنا سفر جلدی سے طے کیا ہے۔ تو کسی بھی جسم کا یونٹ ٹائم میں طے کردہ ڈسپلیسمنٹ اس جسم کی ویلاسٹی کہلاتی ہے۔ یونٹ ٹائم کا مطلب 1 سیکنڈ اور ڈسپلیسمنٹ کا مطلب کل سفر۔ تو کوئی بھی جسم 1 سیکنڈ میں جتنا ڈسپلیسمنٹ طے کرتا ہے اسے اس جسم کی ویلاسٹی کہا جاتی ہے۔ ان دونوں اجسام کی حرکت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سائیکل کی ویلاسٹی کم ہے اور کار کی ویلاسٹی زیادہ ہے۔ چنانچہ ویلاسٹی کسی جسم کا یونٹ ٹائم میں طے کردہ ڈسپلیسمنٹ ہے تو ویلاسٹی کا فارمولا اس طرح لکھا جا سکتا ہے، ویلاسٹی از ایکول ٹو طے کردہ ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم۔ تو فارمولا بنے گا V از ایکول ٹو ڈی اوور ٹائم۔ ڈی یہاں ڈسپلیسمنٹ ہے اور T ٹائم ہے۔ ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ میٹر ہے اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے، تو اس طرح ویلاسٹی کے یونٹ ہوں گے میٹر پر سیکنڈ۔ اس کو ہم m/s ریز ٹو پاور -1 بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بٹے کے نیچے جو s ہے اس کی پاور نیچے +1 ہے، جب یہ بٹے کے اوپر جائے گا تو اس کی پاور -1 ہو جائے گی۔ ویلاسٹی کی ڈیمینشن L/T ریز ٹو پاور -1 ہے۔ جس سمت میں ڈسپلیسمنٹ عموماً طے ہو رہا ہوتا ہے اسی سمت میں ویلاسٹی کی ڈائریکشن ہوتی ہے، تو اس لیے ویلاسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے۔ کوئی بھی جسم جہاں سے اپنی حرکت شروع کرتا ہے تو اس وقت جو اس کی پہلی ویلاسٹی ہوتی ہے اسے ابتدائی ویلاسٹی یا انیشیل ویلاسٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو VI کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ جسم حرکت کر کے کسی جگہ پر پہنچتا ہے اور اس کی دوبارہ ویلاسٹی ریکارڈ کی جائے تو جو دوسرے نمبر پر ویلاسٹی ریکارڈ کی جاتی ہے اسے آخری ویلاسٹی یا فائنل ویلاسٹی کہتے ہیں، اس سے VF کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ پہلی ویلاسٹی انیشیل ویلاسٹی، اس کے بعد جو ویلاسٹی لی جائے گی وہ فائنل ویلاسٹی کہلائے گی۔ جب ایک چھاتہ بردار یا پیراشوٹ میں ایک بیٹھا ہوا آدمی اپنا پیراشوٹ کو آہستہ آہستہ نیچے لاتا ہے تو یہ پیراشوٹ ایک یونیفارم ویلاسٹی سے نیچے آتا ہے۔ اس یونیفارم ویلاسٹی کو ٹرمینل ویلاسٹی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح موٹر وے پر گاڑیوں کی ویلاسٹی چیک کرنے کے لیے ایک گن استعمال ہوتی ہے جسے لیدار گن کہا جاتا ہے۔ ویلاسٹی کی 4 مزید اقسام کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یونیفارم ویلاسٹی، دوسرے نمبر پر ویریبل ویلاسٹی، تیسرے نمبر پر ایوریج ویلاسٹی اور لاسٹ پر انسٹنٹینیس ویلاسٹی کی بات کی جائے گی۔ یونیفارم ویلاسٹی، اگر کوئی جسم برابر ٹائم میں برابر ڈسپلیسمنٹ طے کر رہا ہو تو اس کی ویلاسٹی یونیفارم ویلاسٹی کہلائے گی۔ اس کا فارمولا وہی ہوگا V is equal to D over time۔ فرض کریں ایک جسم ہے، یہ جسم 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا ڈسپلیسمنٹ طے کرتا ہے، تو اس کی ویلاسٹی 2 میٹر پر سیکنڈ بنے گی۔ پھر یہ جسم 2 سیکنڈ میں دوبارہ 4 میٹر کا ڈسپلیسمنٹ طے کرتا ہے، تو دوبارہ اس کی ویلاسٹی 2 میٹر پر سیکنڈ ہی آئے گی۔ پھر یہی جسم 2 سیکنڈ میں 4 میٹر کا ڈسپلیسمنٹ طے کرتا ہے، تو دوبارہ اس کی ویلاسٹی 2 میٹر پر سیکنڈ ہی آئے گی۔ پہلی دفعہ ٹائم 2 سیکنڈ لگے، پھر ٹائم 2 سیکنڈ لگے، تیسری دفعہ بھی ٹائم 2 سیکنڈ لگے ہیں۔ پہلی دفعہ ڈسپلیسمنٹ 4 میٹر طے ہوا ہے،
दूसरी दफ़ा भी डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर तय हुआ है, तीसरी दफ़ा भी डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर तय हुआ है। तो बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है। इस डेटे से जो वेलोसिटी की वैल्यूज़ बन रही हैं वो हर बार सेम आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं। तो इस किस्म की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई जिस्म बराबर टाइम में मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। इसके लिए फार्मूला वही है, v इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आवर टाइम। फर्ज करें एक जिस्म 2 सेकंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करता है तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बनेगी। फिर ये जिस्म 2 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करता है तो इसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड होगी। फिर ये जिस्म 2 सेकंड में 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करता है तो अब इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड आएगी। पहली दफ़ा टाइम 2 सेकंड इस्तेमाल हुए थे, दूसरी दफ़ा भी टाइम 2 सेकंड इस्तेमाल हुआ है, तीसरी दफ़ा भी टाइम 2 सेकंड इस्तेमाल हुआ है। तो हर दफ़ा एक ही टाइम लग रहा है, बराबर टाइम यूज़ हो रहा है। लेकिन पहली दफ़ा डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर तय हुआ है, दूसरी दफ़ा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर तय हुआ है, तीसरी दफ़ा डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर तय हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ तय हो रहा है। तो इस किस्म के डेटे से जो वेलोसिटीज़ की वैल्यू बन रही है, पहली दफ़ा वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आई है, तीसरी दफ़ा 3 मीटर पर सेकंड आई है, दूसरी दफ़ा 0.5 मीटर पर सेकंड आई है। तो वेलोसिटीज़ की वैल्यू तब्दील हो रही हैं। तो इस किस्म की वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है, या इसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यहाँ जो डेटा दिया गया है इसमें टाइम बराबर है और डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ है। इसका उल्ट भी हो सकता है कि टाइम मुख्तलिफ हो और डिस्प्लेसमेंट बराबर आए तो फिर भी जो वेलोसिटी होगी वो मुख्तलिफ हर दफ़ा आएगी। तो इस किस्म की वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। एवरेज वेलोसिटी या औसत वेलोसिटी, कुल टाइम में कुल तय करदा डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी की वैल्यू बनती है उसे एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। इसके लिए जो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू सिग्मा डी आवर टी। सिग्मा डी का मतलब है कुल डिस्प्लेसमेंट और सिग्मा टी का मतलब है कुल टाइम। फर्ज करें एक जिस्म है, ये 2 सेकंड में ये 4 मीटर का फासला तय करता है। फिर ये दोबारा जिस्म आगे और मूव करता है और 1 सेकंड में 3 मीटर का फासला तय करता है। ये जिस्म दोबारा और मज़ीद आगे मूव करता है और 3 सेकंड में 6 मीटर का फासला तय करता है। इसके लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू लिखी गई है वो v इज़ इक्वल टू 13/6 है। अब 13 इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो 4 मीटर जमा 3 मीटर जमा 6 मीटर। इन सभी डिस्प्लेसमेंट को जमा करने से 13 डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है। इसी तरह इसका टाइम 6 सेकंड लिखा गया है जो कि 2 सेकंड जमा 1 सेकंड जमा 3 सेकंड, इन तमाम टाइम को जमा करने से टोटल टाइम 6 सेकंड लिखा गया है। तो बटे के ऊपर टोटल तय करदा डिस्प्लेसमेंट और बटे के नीचे टोटल इस्तेमाल शुदा टाइम को लिखने से जो वेलोसिटी की वैल्यू बनी है वो 2.1 मीटर पर सेकंड है। इस किस्म की वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। इसको हम आम तौर पर जिस तरह रियाजी में एवरेज लेते हैं उस तरह भी निकाल सकते हैं। पहले हिस्से में 2 सेकंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है तो इस हिस्से में जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरे हिस्से में 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है तो इस हिस्से के लिए जो वेलोसिटी की कीमत है वो 3 मीटर पर सेकंड है।
तीसरे हिस्से में 3 सेकंड में 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, तो इस हिस्से के लिए वेलोसिटी की कीमत 2 मीटर पर सेकंड है। 2 मीटर पर सेकंड जमा 3 मीटर पर सेकंड जमा 2 मीटर पर सेकंड, इन तीन वेलोसिटीज़ की वैल्यू को जमा किया और 3 बार वेलोसिटी है तो 3 पर तकसीम करने से फिर भी जवाब 2.1 ही आएगा। तो इस तरह भी एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम के बिल्कुल छोटे से लम्हे में तय होने वाले डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी बनेगी उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। फ़र्ज़ करें कि एक सर्कुलर पाथ पर एक जिस्म हरकत कर रहा है और हम इसे 3 सेकंड हरकत करने देते हैं, तो 3 सेकंड में ये काफ़ी सफ़र तय कर लेता है। टाइम की वैल्यू भी ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो इस तरह वेलोसिटी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बनेगी। अब दोबारा इस जिस्म को हरकत दी जाती है और इसे 2 सेकंड बाद रोक लिया जाता है, तो अब ये पहले की निस्बत कम डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। अब टाइम की वैल्यू भी कम है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कम है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी पहले से थोड़ी बनेगी। फिर दोबारा इसे हरकत दी जाती है और 1 सेकंड बाद रोक लिया जाता है। अब इसे हरकत करने के लिए कम टाइम दिया गया तो उसमें यह डिस्प्लेसमेंट भी कम तय करेगा, तो इस तरह वेलोसिटी की वैल्यू भी कम बनेगी। अब दोबारा इसे हरकत दी जाती है और आधे सेकंड बाद इसे रोक लिया जाता है, तो अब इसके पास टाइम थोड़ा था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी ये थोड़ा तय करेगा, तो इस तरह वेलोसिटी की वैल्यू पहले से छोटी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस्म को जितना कम टाइम दिया जाएगा उसमें वो बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, तो इस तरह जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ही मिनिमम हासिल होगी। इस तरह की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो v = del d आवर del t है। कंप्लीट इसका फार्मूला v = लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू 0 सच दैट del d आवर del t है।